Assalamu alaikum dear students. Today in this video we will study about digestive system and nutrition in humans. As I mentioned earlier, nutrition in human beings is of holozoic type. This means human beings जो है they take solid food. Now there are different steps that are involved in holozoic mode of nutrition. First ingestion है, digestion है, absorption है, assimilation है and ejection है. Let us start now. Ingestion, that in human beings we have special organs for ingestion of food. Ingestion simply means taking enough food through mouth. ठीक है बेटा, ingestion is simply taking enough food through mouth, and we put food into our mouth with the help of our hands. And there are different organs in our mouth like tongue, teeth, ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में. एंड टंग जो है दैट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, एंड टीथ हेल्प्स टू च्यू एंड बाइट फूड. एंड जो सलाइवा है दैट मेक्स द फूड पेस्ट लाइक which can be easily passed through our food pipe. Now digestion. Second is digestion, how that complex food, how it gets converted into simple food. The food is broken down and converted into simple molecules in its utilizable form, that is digestion. Or we can say breaking down procedure of food, that is known as digestion. और जो बेटे digestion है in human beings, the digestion of food begins in the mouth. Digestion कहाँ से start होती है? From our mouth. As digestion of food starts as we put food into our mouth, the mouth cavity that contains teeth, tongue, salivary glands. और मैंने आपको अभी बोला जो teeth है it cuts the food into small pieces, chew and grind it. So teeth जो है बेटा हमारे माउथ में they helps in physical digestion. और जो salivary glands हमारे माउथ में होते हैं they produce saliva. और जो हमारी tongue है that helps in mixing saliva with food. saliva जो होता है बेटा ये होता है watery liquid, and it makes our food paste like, or because it wets the food into our mouth. और जो होता है ये wetted food जो होता है, जो ये paste like food होता है, so that it can be swallowed more easily. ठीक है, this is जब भी हम देखते हैं कोई टेस्टी फूड, आवर जो माउथ है दैट स्टार्ट्स वाटरिंग. जो ये वाटरिंग ऑफ माउथ होता है दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा बाय सल्वरी ग्लैंड्स. ठीक है बेटा. और जो सेल्वरी ग्लैंड्स है दे हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय सेक्रेटिंग एंजाइम दैट इज नोन एज सेल्वरी अमाइलेज. और जो सेल्वरी अमाइलेज है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू ग्लूकोज. ठीक है, दिस मीन्स जो पार्शियल फूड डाइजेशन ऑफ फूड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. एंड फूड फिर क्या होता है, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, इधर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाती हूँ. दिस मीन्स एज वी पुट इनटू फूड इनटू आवर दैट इज नोन एज इंजेक्शन, एंड in partial breakdown of food, or we can say partial digestion of food that takes place into our mouth. and माउथ में कौन कौन सा ऑर्गन हमें हेल्प करता है? टंग, सिल्वरी ग्लैंड और दिस टीथ. एंड जो ये स्लाइटली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है बेटा दैट इज pushed into the food pipe that goes down the food pipe which is also known as ओसोफैग्स. जो ये ओसोफैग्स है और फूड पाइप है that carries the food into our stomach. और जो फूड पाइप जो होती है हमारी इसके जो वॉल्स होते हैं, फूड पाइप के वॉल्स, इसमें होते हैं मसल्स. और वो क्या करते हैं? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. And due to this contraction and expansion, this is also known as peristaltic movement. Due to this peristaltic movement, food is pushed into our stomach. ठीक है, this peristaltic movement moves the food in all the digestive organs through the alimentary canal. And from this food pipe, the food is pushed into our this J-shaped organ होता है, and that is known as stomach. याचून में आचवाना. ठीक है, the stomach is a J-shaped organ and it is present on the left side of our abdominal cavity. The food is further digested in our
स्टोमक, ठीक है। द फूड इज चर्नड इन द स्टोमक, ये हमारे स्टोमक में कितनी देर रहता है, इट इज चर्नड इन आवर स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो ये फूड होता है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट। जो स्टोमक वाल होता है बेटा, इनर वॉल्स ऑफ जो स्टोमक है, इट सीक्रेट्स ए गैस्ट्रिक जूस। एंड जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। जो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट हेल्प्स इन, it makes the acidic medium in our stomach so that it also helps in killing the bacteria। आपने सुना होगा, हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी है। वो एसिडिटी किससे होती है, जब हम बहुत टाइम के लिए फूड नहीं खाते, जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टोमक में ज़्यादा होता है, दैट काज एसिडिटी ऑफ आवर स्टोमक, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट मेक्स द गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर एंड इट आल्सो हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया, बिकॉज जो ये दूसरा एंजाइम सिक्रेट करता है दैट इज पेप्सिन। दिस पेप्सिन इट हेल्प्स इन digestion of proteins and this pepsin it is active only in acidic medium। this means जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस जो होता है बेटा, इट इज स्लाइम स्टिकी सब्सटेंस एंड ये क्या करता है, इसकी क्या फंक्शन है, it protects the stomach walls from secreting this more acid, ठीक है बेटा। this means जो ये mucus है it helps the stomach walls, it helps to protect the stomach walls from its own secretion of hydrochloric acid, ठीक है। और जो बेटा है then this partially digested food जो है स्टोमक में एक रहता है फॉर अबाउट 3 आवर्स। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है देन इट गोज फ्रॉम द स्टोमक इनटू आवर स्मॉलर intestines। These are smaller intestines। The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscles which release it in small amounts। स्टोमक से स्मॉलर बहुत कम ही जाते हैं हमारी कहाँ, स्मॉलर इंटेस्टाइन्स। स्मॉलर इंटेस्टाइन्स जो बेटा होते हैं दैट आर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन से दे आर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको क्यों स्मॉलर, इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 to 5 मीटर्स, बट जो इनकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, 2.5 to ये होती है स्मॉल। लॉन्ग ट्यूब 6.7 मीटर्स लॉन्ग, कॉइल्ड और कम्पैक्ट होते हैं, और जो लेकिन इनका जो डायमीटर होता है, विड्थ होती है वो होती है 2.5 to 3 सेंटीमीटर। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं इनमें क्या होती है, जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है दैट टेक्स प्लेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मीन्स जो ये कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। और जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, ये देखते हो आप, ये दे आर कॉइल्ड लाइक दे आर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे ग्लैंड्स भी होते हैं, एक ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, और होता है लिवर, और एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब फूड आता है तो क्या होता है, इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स पेनक्रियाज एंड लिवर, ठीक है। जो लिवर है इट सिक्रेट्स बाइल जूस ये सिक्रेट करता है, एंड दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल की फंक्शन है बेटा, ये होता है अल्कलाइन, इट कंटेन्स साल्ट्स, एंड इसकी जो फंक्शन होती है इट हेल्प्स टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। दिस मीन्स जो बाइल जूस की फंक्शन है, इसकी क्या फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये ग्रीन येलोविश लिक्विड होता है, बट इसको मेड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और सेकेंड जो बाइल की फंक्शन होती है, ये इट क्रिएट्स अल्कलाइन मीडियम। जो फूड आता है हमारे स्टोमक से एसिडिक मीडियम से, इट मेक्स द फूड एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन, ठीक है। सो दैट द पेनक्रियाज जो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है एंजाइम्स, क्योंकि वो किस में करते हैं,
फंक्शन वो किस में एक्टिव रहते हैं, इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है बेटा, दिस मीन्स बाइल की दो फंक्शन है, एक इट सिक्रेट्स बाइल जूस, और जो बाइल जूस होता है दैट्स अल्कलाइन इन मीडियम, दैट मेक्स द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन, एंड सेकेंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, और जो पैनक्रियाज है, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, रिमेंबर इट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंड इट लाइज पैरेलल एंड beneath टू द स्टमक। ठीक है, beneath द स्टमक के नीचे होता है। और जो पैनक्रियाज है, इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड विच कंटेन्स digestive enzyme like pancreatic amylase that helps in digestion of starch, lipase that helps in digestion of emulsified fats, and trypsin and that helps in digestion of protein. This में जो pancreatic juice है, it helps in digestion of, it secretes 3 enzymes, pancreatic amylase which helps in digestion of starch, and trypsin that helps in digestion of protein, and lipase that breaks the emulsified fats. ठीक है बेटा, और जो walls of small intestines है, they contain glands which secrete intestinal juice, जो complete digestion of food है बेटा, that takes place in small intestines, and in small intestines there is complete digestion of all the food. This means all the food gets converted into more simpler molecules like carbohydrates that change into glucose, protein is changed into amino acids, and fats जो है that they change into फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जिसमें जो एक ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये होते हैं स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। इन दिस वे जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है दैट गेट्स कंप्लीट इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, एंड ये कैसे होते हैं, बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स। दिस मीन्स फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद होता है जब ये फूड अब कंप्लीटली होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज, अब ये होता है एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड। दिस मीन्स आफ्टर डाइजेशन जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होते हैं उनको होते हैं हेयर लाइक फिलामेंट्स, और जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं दे आर सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। नाउ जो होते हैं ये सिंपली डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज, it passes through the walls of our small intestine which contains blood capillaries. ठीक है, and जो small intestine that are main region for the absorption of food, और small intestines क्या होते हैं, they are especially adapted for absorbing the digested food। और जो ये वॉल्स, इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल, आप इधर देख दो, इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं दे हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दैट आर नोन एज विलाई। इनको क्या बोलते हैं, विलाई, ताकि फूड कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। द प्रेजेंस ऑफ विलाई जो होता है इट गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल वेरी लार्ज सरफेस एरिया। इनसे क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देखते हो, इनसे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, ताकि जो फूड दैट विल गेट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड। और जो डाइजेस्टेड फूड है that finally goes into our blood, and that is known as absorption. This means first is ingestion, second is ingestion starts from our mouth, digestion that partially takes place into our mouth and in our stomach, in our small intestines, and third जो है बेटा absorption that takes place in our small intestine. This means जो completely digested food है that goes into our blood. Got it? ठीक है बेटा, अब जो ये ब्लड होता है बेटा दैट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड, जो ये ब्लड होता है दैट कैरीज द डिसॉल्व्ड फूड, और वी कैन से डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी व्हेन इट गेट assimilated as the part of the cells. The assimilated food is used by our body cells for obtaining energy as well as for growth and repair of our body. जो एसिमिलेशन होता है बेटा इसमें क्या होता है, जो ये कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है इट रीच टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट फूड। ठीक है बेटा, और जो डाइजेस्टेड फूड है विच इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी इमीडिएटली दैट इज स्टोर्ड इन आवर लिवर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड दैट इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड बाय आवर बॉडी दैट इज स्टोर्ड इन आवर liver as glycogen. Remember it,
ठीक है, दिस मीन्स दिस assimilation. नाउ लास्ट जो स्टेप है, सारा फूड जो होता है हमारी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होता है, some of it remains undigested. A part of food which cannot be digested in our body, that undigested food that cannot be absorbed by our small intestines. So the undigested food जो होता है बेटा, that passes from these small intestines into our large intestines. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वो होते हैं लार्ज वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड जो होते ये होते हैं क्वाइट वाइड. और जो वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड विद द हेल्प ऑफ विलाई. एंड ड्यू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इट बिकम सॉलिड. जो लास्ट पार्ट ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है वो होता है रेक्टम. इधर आप देखते हो rectum, and undigested food जो होता है it is stored into the rectum for some time and finally it is expelled out through the ants and in the form of stool. ठीक है, और जो act of expelling the feces from our body or solid waste from our body, that is known as egestion. This means बेटा आपने इस वीडियो में देखा, एक हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में जो होती है जो न्यूट्रिशन होती है दैट्स हॉलोजाइक. इसमें हमने देखा इंजेक्शन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी और इजेशन भी, और हमने इसमें पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी. और अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, उसमें भी आपने यही लिखना है. और अगर आपको क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें भी आपने यही लिखना है. ठीक है, अंडरस्टैंड. थैंक यू.